عليما وجناح من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. तर्जुमा। अल्लाह के नाम से के साथ शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और आपके रब ने यह हुक्म फरमाया है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो और वालिदैन के साथ भलाई का मामला करो। अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनको उफ मत कहना और उन्हें झड़क कर जवाब मत देना, बल्कि उनके साथ एहतराम से बात करना और नरमी और रहम के साथ उनके सामने झुक कर रहना और दुआ करते रहना कि ए परवरदिगार, इन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने रहमत और शफकत के साथ मुझे बचपन में पाला था। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Jazakallah Samir sir. Now I will request our Chief Financial Officer Mohammad Rehan to start his presentation. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Rehan, as Mr. Majid told all of you, and I am working with Atak Cement since last 16 years. I welcome all the participants for the corporate review session for the year 23-24. इसको just we start with इसमें थोड़ा सा briefly we will introduce about our company, a brief profile. उसके बाद we will discuss about the progress for the year 23-24. And then उसके बाद हम जो discuss करेंगे वो first quarter के results को एक briefly we will touch upon it. अच्छा जी, company information, as you all are aware that the Atak Cement company is basically located at Hub Balochistan and is one of the leading player in the south market. जो हमारी जो production capacity है वो around 4.3 million tons की है, and we started our commercial production since the year 1988. Second, Falcon brand के नाम से हमारी कंपनी सीमेंट बेच रही होती है, जिसमें Falcon is a premium brand in this market of the south and which has a great popularity among the people both in the local market and the international market because of our superior and the consistent quality. जो major products that we are dealing with is the ordinary Portland cement है, sulfate resistant cement है, Falcon block cement and the rock cement. We are selling both cement and clinker. Clinker basically we are export in the regional markets of Bangladesh, East Africa. Next slide. जो टोटल प्रोडक्शन हमारे प्लांट की सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी आफ्टर इंडक्शन ऑफ लाइन 4 जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में इंस्टॉल हो गई है, तो हमारी 4.3 मिलियन टन्स की हमारी टोटल प्लांट कैपेसिटी है। लाइन 1 हमारी स्टार्ट हुई थी 1988 में विच हैज अ कैपेसिटी ऑफ 787,000 टन्स। लाइन 2 हैज 1 मिलियन टन्स। लाइन 3 2018 में हमारी जो इंस्टॉल हुई थी दैट हैज 1.2 मिलियन टन्स। एंड लाइन 4 जो हमारी जो लास्ट लाइन है जो अभी हमने 2024 में अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टेड इट्स कमर्शियल प्रोडक्शन, उसकी कैपेसिटी है 1.2 मिलियन टन्स की। तो टोटल कैपेसिटी इज अराउंड 4.3 मिलियन टन्स। We are almost at par in the south market with the Lucky. Lucky has almost the same capacity. Next slide. अच्छा, जो सबसे पहले जरा हम ये सीमेंट इंडस्ट्री का जरा एक होलिस्टिक रिव्यू ले लेते हैं व्हाट द सीमेंट इंडस्ट्री परफॉर्म ड्यूरिंग द ईयर 23-24. As all of you are aware that has been a very challenging year for the cement industry and as well as the country. Because of the uncertain political and economical situation in the country और high interest rate की वजह से और because of the high inflation, the buying power of the customers has badly been affected. और जो local जो भी investors भी थे वो more tilted towards the fixed investment sides के ऊपर थे, banks के ऊपर, क्योंकि banks are giving them a very lucrative returns of 20-22%. So obviously the investors का interest towards the construction sector is little bit mitigated. उसकी वजह से सीमेंट सेक्टर ने जो है लोकल में इट्स डिक्रीज बाय 5% इफ यू कंपेयर विद द लास्ट ईयर। जो है साउथ मार्केट जो है वो 4% से रिड्यूस हुई है इफ यू कंपेयर विद द लास्ट ईयर, एंड द साउथ मार्केट जो है वो 9% से रिड्यूस हुई है।
Because of the lower demand in the local market, जो cement players, especially the south players, has shifted towards the export sides. Even though जो exports में margins हैं that are not so attractive, but because of the utilization, capacity utilization, most of the south के players जो थे that has been shifted towards the export side. और export में if you could see that from 3.5 million tons, जो हमारी total exports है ये during that year is 5.6 million tons, जिसकी growth है 61% if we compare with the same period last year. Overall जो growth witness की है cement industry that is 1% is mainly because of the export side which has witnessed a growth of 55%. अगर हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो जो नॉर्थ की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रही है वो 50% है, reduced by 8% if we compare with the last year 2023. साउथ की जो मार्केट है जो है 23 में 66% की कैपिटलाइजेशन थी और 24 में ये 76% इसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रही है. लेकिन हैविंग सेड दिस, जो मेजर जो इंक्रीज हुआ है वो बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट. अगर हम एक्सपोर्ट्स को एक्सक्लूड कर दें तो अराउंड 41% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थी साउथ की मार्केट की एज फार एज द लोकल डिस्पैचेस कंसर्न. ओवरऑल हमारे capacity utilization industry wide रही है that is been reduced by 5% from 60 to 55% has been reported in the year 2024. Let's talk about the Atak Cement progress as far as the operational concerns. जो हमारी total clinker production जो reported है that is 2.3 million tons की हमने clinker production की है, which is increased by 20% if we compare with same period last year. Cement production obviously because of the lower cement dispatches जो production रही है वो कम रही है by -9%. जो हमारी total dispatches अगर हम देखें तो हमारी total dispatches है 2.3 million tons against 2 million tons of the last year, which is increased by 14%. However, इसमें जो local dispatches हैं that has been shrunk by 9%. जो total local dispatches हमने की है year 24 में that is 1.2 million tons against 1.4 million tons of same period last year. तो local dispatches में हमारी witness हुई है negative growth है 9% की, which is in line with the industry because of the whole industry sector remain under pressure. बाकी exports में जो है वो हमने जो है 57% की ग्रोथ दिखाई है जो कि हमारी 1.1 मिलियन टन्स की टोटल एक्सपोर्ट हुई है अगेंस्ट 698,000 ऑफ द सेम पीरियड लास्ट ईयर. मेनली इसमें जो है हमारी क्लिंकर एक्सपोर्ट्स है जो कि 9,70,000 टन हमने सोल्ड किए इन द रीजनल मार्केट्स बांग्लादेश में, श्रीलंका एंड ईस्ट अफ्रीका. तो जिसकी वजह से कंपनी की डिस्पैचेस हैज बीन इंप्रूव्ड बाय 14%. नेक्स्ट स्लाइड. टोटल जो हमारा टर्नओवर है दैट इज 28.5 बिलियन का फॉर द ईयर 2024, which is increased by 12% if we compare with the same period last year. This is mainly because of the higher dispatches of the clinker. जो gross profits हैं that is 5.3 billion है current year के, which is reduced by 7%. अगर हम नीचे bottom line पे देखें तो gross margin जो है हमारे ये from 22% से 19% हुए, declined by 3%. इसके दो फैक्टर्स हैं जो आगे वाली स्लाइड में हम फर्दर इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे. एक तो बिकॉज ऑफ दी लोअर रिटेंशन क्योंकि सेल्स मिक्स आपका 50% रहा है एक्सपोर्ट का और लोकल का, तो जिसकी वजह से रिटेंशन डाइल्यूट हुई है. एंड सेकेंडली इसमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दैट हैज आल्सो बीन इंक्रीज बाय 3%, तो उसकी जो मेजर इम्पैक्ट्स है तो दैट वी विल डिस्कस इन द लेटर ऑन द स्लाइड्स, द रिटेंशन एंड द प्रोडक्शन साइड. द प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन इज वन, जो numbers are hamaरे पास 2 billion के against 3.1 billion, lower by 37% because of the higher distribution expenses. जो exports के साथ जरा distribution expenses भी ज्यादा attributed होते हैं जो हमारे KGTL के charges हैं and दूसरे handling charges हैं, तो उसकी वजह से आपके operational cost जो है आपकी ज्यादा बढ़ जाती है, तो that has been reflecting. अच्छा, इसमें जो इस साल का जो एक हमारा जो मेजर इवेंट था वो था हमारे डाइवर्समेंट गेन जो हमने रिकॉग्नाइज किया है 4.3 बिलियन रुपीस का. दिस बेसिकली दी जो हमारी एक इन्वेस्टमेंट थी सकल कतान में इन इराक, वो हमने सोल्ड कर दिया टू द लोकल इराकी पार्टनर. तो उसका जितने भी पैसे आए हैं तो दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज इन द ईयर 2024. तो जो टोटल गेन हमें उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में रिसीव हुआ दैट इज 4.3 बिलियन रुपीस की, दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द ईयर 2024.
जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है बिकॉज ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ द डाइवेस्टमेंट गेन, जो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है दैट इज 5.9 बिलियन रुपीस, हायर बाय 106% एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है दैट इज 3.6 बिलियन, हायर बाय 135%, एंड सिमिलरली ईपीएस जो है हमारा रिपोर्टेड 25.95 रुपीस है अगेंस्ट लास्ट ईयर ऑफ 11.03 रुपीस। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, जस्ट फॉर योर कंजप्शन थोड़ा सा हमने इस साल थोड़ा सा एक एनालिसिस और भी रखा है टू बेटर रिफ्लेक्ट दी पोजीशंस जो है, जिसमें दो बड़े हमारे पास एलिमेंट आ जाते हैं। एक तो नेट रिटेंशन आ जाती है which is gross turnover less sales tax and the FED, जो levies के बाद जो हमारे पास that the net company is earning on a particular sell। तो इसमें हमारे पास जो लोकल ओवरऑल रिटेंशन इफ यू सी जो हमारी डाइल्यूट हुई है 12,394 से 12,223 रुपए में जो हमारी आ रही है ऑलमोस्ट ₹101% इट्स अकाउंट ऑफ। इसके दो एलिमेंट्स, एक तो लोकल रिटेंशन, तो इफ यू सी कि हमारी इंप्रूव हुई है फ्रॉम ₹13,402 से 14,739 से, जो कि ऑलमोस्ट 1,400 रुपए का इंक्रीज आ रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन दी सेल प्राइसेस, जिसकी वजह से लोकल रिटेंशन हमारी इंप्रूव हुई है। बट एक्सपोर्ट का नंबर्स जो है इसमें, बिकॉज एक्सपोर्ट में जो मार्जिन है दैट इज वेरी लो, और मोस्टली जो एक्सपोर्ट की सेल्स है वो हमारी जो है इस वेरिएबल कॉस्ट प्लस के ऊपर ही हो रही होती है, एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज प्रीटी लो इन दैट सेल। तो उसकी वजह से जो हमारी रिटेंशन जो है रिड्यूस हुई है। इफ यू लुक एट द लास्ट ईयर फ्रॉम 10,438 रुपीज से 9,300 पे गई, ऑलमोस्ट अ डिप ऑफ 1,100 रुपीज पर टन because of the making extra sales the regional market, we aggressive in the markets, तो obviously थोड़ा सा प्राइस में थोड़ा सा हमें कुछ क्वेश्चन देना पड़ा था to attract more sales, so that's why the retention has been reduced। प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ये हमारी 300 रुपए से बढ़ी है फ्रॉम 9,955 रुपीज से हुई हमारी जो अगेन 9,634 रुपीज पर टन ऑफ टोटल डिस्पैचेस, एंड द ग्रॉस प्रॉफिट हैज आल्सो बीन रिड्यूस्ड बाय 500 रुपीज पर टन। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, जो प्रोडक्शन कॉस्ट में देयर आर टू मेजर एलिमेंट्स जो कि किसी भी सीमेंट की प्रोडक्शन में देखने वाले होते हैं। एक होती है फ्यूल एंड द पावर, जो आपके ऑलमोस्ट इज राउंड अबाउट 60 to 70% आपकी वेटेज होती है फ्यूल एंड पावर कॉस्ट की। तो फ्यूल कॉस्ट हमारी जो है 5,240 रुपए 2023 में थी, दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 4,989। इसमें जो वन ऑफ द मेजर रीजन जो है वो एक हमारे पास है क्योंकि लाइन 4 अलहमदुलिल्लाह हमारी ऑपरेशन हो गई थी, तो लाइन 1 में जो है हमारी एफिशिएंसीज आर बेटर एज कंपेयर टू द लाइन 2। तो उस एफिशिएंसीज की वजह से जो फ्यूल कॉस्ट पैटर्न है दैट हैज बीन डाइल्यूटेड फर्दर। जो हमने जो यूएसए कोयला और दूसरे जो ऑल्टरनेट फ्यूल्स है इसकी रिसोर्सेज ज्यादा बढ़ाई है हमने, ऑलमोस्ट वी कुड से तकरीबन 15 से 20% वी आर यूजिंग दी ऑल्टरनेट चीपर फ्यूल्स, जिसकी वजह से ये फ्यूल कॉस्ट पर टन डाइल्यूट हुई है। पावर कॉस्ट में जो है हमारा इजाफा हुआ है ऑलमोस्ट 500 रुपीज पर टन, जो करंट ईयर के जो है वो 1608 है एज कम्पेयर टू 1139। इसमें इवन दो जो हमारा पावर मिक्स है वो सेम है, जो कि ग्रिड पे डिपेंडेंस हमारी ऑलमोस्ट 25 to 30% है, तो इट्स सेम इफ यू कंपेयर विद 2023। बट एज यू आर अवेयर जो लास्ट ईयर थे बड़े एक्सोबरेंट इंक्रीज हुए थे पावर टैरिफ में, तो इवन दो विद द सेम पावर मिक्स जो है उसकी वजह से ऑलमोस्ट 39% टैरिफ हैज बीन इंक्रीज्ड, जो कि इसमें ये रिफ्लेक्शन आ रही है इन दी प्रोडक्शन कॉस्ट पैटर्न में, जो आपको 400 रुपए के इजाफा नजर आ रहा है। बाकी रॉ एंड पैकिंग इज बेसिकली द इन्फ्लेशनरी इंक्रीज बिकॉज ऑफ द हायर डीजल प्राइसेस एंड द माइनिंग कॉस्ट, तो उसमें एक इजाफा है। एंड अदर प्रोडक्शन अदर ओवरहेड्स कॉस्ट जो है वो डाइल्यूट हुए फ्रॉम 2,116 से 1,859 से बिकॉज इट्स फिक्स इन नेचर and because of the higher dispatches that cost has been diluted. Next slide. अच्छा, जो हमारा क्वार्टरली एनालिसिस जो है तो द क्वार्टर इज अगेन जो फर्स्ट क्वार्टर जो गुजरा है हमारा सितंबर 24 का, that has also the same issues, the market remained depressed even though अभी वे फॉरवर्ड में आगे थोड़ा इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन आ रहा है, इन्फ्लेशन की भी आ रहा है, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में जो था देयर इज नो सच boost from the investor side towards the construction to
major reason we can say. One is the because of the monsoon season आपका थोड़ा सा ये affected होता ही है first quarter. Secondly जो थोड़ा सा tax regime में जो उन्होंने construction side में builders के ऊपर जो taxes लगाए हैं plus FED का increase जो हुआ है और double जो कर दिया उन्होंने 4,000 रुपए per ton, तो that obviously affected the buying power of the customers. तो इसकी वजह से cement industry ने ऐसी कोई boost pick नहीं किया है and it remained depressed. और जो इंडस्ट्री वाइज अगर देखें तो 20% से रिड्यूस हुई है लोकल डिस्पैचेस एंड दैट इज जस्ट 7.9 मिलियन टन्स जो है वो सोल्ड हुई है इन द फर्स्ट क्वार्टर. अगर हम लास्ट ईयर से करें तो इट ऑलमोस्ट 10 मिलियन. तो 2 मिलियन से टोटल पैन पाकिस्तान डिस्पैचेस लोकल मार्केट की रिड्यूस हुई है. नॉर्थ में जो है वो 18% उसमें नेगेटिव ग्रोथ विटनेस की है एंड द साउथ मार्केट इज श्रिंक बाय 29% इफ वी कंपेयर विद द लास्ट सेम क्वार्टर लास्ट ईयर. तो फर्स्ट क्वार्टर में अगेंस्ट जो dispatches थी that remain under pressure. Exports obviously as a company or as an industry the main objective is to remain operational at least the 2 production lines. These are more efficient just to dilute the fixed overheads. तो कंपनी ने अगेन aggressively थोड़ा एक्सपोर्ट साइड्स के ऊपर फोकस किया इसमें एंड उसी वजह से पूरी इंडस्ट्री एंड कंपनी इटसेल्फ. तो एक्सपोर्ट्स में वी विटनेसिंग ग्रोथ ऑफ 22% एज कंपेयर टू सेम पीरियड लास्ट ईयर. टोटल इंडस्ट्री वाइज अगर हमारी डिस्पैचेस जो है वो नेगेटिव रही है बाय 14% इफ वी कंपेयर विद सेम क्वार्टर लास्ट ईयर. नेक्स्ट स्लाइड. जो टोटल प्रोडक्शन अटक सीमेंट ने इन द फर्स्ट क्वार्टर की है दैट इज 5,16,000 टन्स, लोअर बाय 7%. जो सीमेंट प्रोडक्शन है दैट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 11%. 3,09,000 टन की सीमेंट प्रोडक्शन रही है इन लाइन विद द डिस्पैचेस. सेल्स लोकल डिस्पैचेस जो हैं दैट वी अचीव इज 2,67,000 टन्स अगेंस्ट 338,000 ऑफ द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर. दैट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 21%. and the exports we achieve a growth of 42%. total जो exports रही है हमारी 2,63,000 tons रही है against same quarter of numbers 185,000 tons के. तो 42% growth we witnessing in the export side and the total dispatches has been increased by 1% mainly because of the export sales. Next slide. जो turnover हमारा जो है that is recorded at 6.4 billion rupees, lower by 200 million rupees as compared to same quarter, which is indicating around 4% decline. जो gross profit है that has been reduced by 3% in absolute numbers. अगर हम margin wise देखें तो margin is remain same. जो हमारी 17% रही है even though जो dilution in the retention हुई थी that has been contra. जो हमारी 4% से हमारी production cost reduce हुई in the same quarter last year. उसकी वजह से ग्रॉस मार्जिन रिमेन सेम. ऑपरेशनल प्रॉफिट्स जो है वो ऑलमोस्ट 50% से रिड्यूस हुए हैं बिकॉज ऑफ द हायर एक्सपोर्ट सेल्स एंड हायर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. एंड द इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर हमने जो है वो 2.1 बिलियन का एक रिकग्निशन की थी डाइवर्समेंट गेन की जो पूरे साल का 4.3 बिलियन था एज वी टोल्ड यू अर्लियर. तो उसमें से ये क्वार्टर में ऑब्वियसली नहीं है. जो हमारा टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स है दैट इज 65 मिलियन रुपीस. और अगर हम इसको ऑपरेशनल प्रॉफिट्स का अगर उसको हटा दे तो तकरीबन ये 50% का डिक्रीज है एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर. ईपीएस जो है हमारे पास 0.45 रुपीज पर शेयर है और सेम क्वार्टर में बिकॉज ऑफ द डाइवर्समेंट गेन इट वाज 11.23 रुपीज जो है. नेक्स्ट. अच्छा जो वे फॉरवर्ड है देयर इज अ वन प्रोजेक्ट इन आवर हैंड जिसमें एक हमने डायरेक्टर सपोर्ट में भी अर्लियर भी शेयर होल्डर्स को ये ब्रीफ किया है कि एक 4.8 मिलियन टन 4.8 मेगावाट की एक विंडमिल हम लगा रहे हैं एट आवर प्लांट. दिस इज द फर्स्ट विंडमिल एट हब बलोचिस्तान. अब तक जितनी भी विंडमिल्स लगी हैं ये बेसिकली झंपीर और उसके आसपास के इलाकों में लगी हैं. तो हम में दिस इज द फर्स्ट वन जो हमने इनिशिएटिव लिया है बिकॉज ऑफ जस्ट टू कॉन्ट्रा दी हायर एनर्जी कॉस्ट जो है. तो इंशाल्लाह ताला द प्रोजेक्ट इज इन फुल स्विंग एंड वी आर वेरी मच होपफुल बाय द विद द हेल्प ऑफ अल्लाह. एक है 1 मेगावाट का एक ही होता है जनरली हम जाते हैं. नहीं इसमें देखिए जो इनिशियल जो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी आई थी वो थी तकरीबन 1 मेगावाट की भी थी और
2 मेगावाट की थी जो कि झंपी में लगी हुई मोस्टली जो है ना। अब वो बात है आज से 5-6 साल पहले की। अब जितनी भी नई मिल्स जितनी भी आ रही हैं वो हायर कैपेसिटी की आ रही है। एक तो इसका फायदा ये होता है कि आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो आपकी कम हो जाती है, कैपेक्स का वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि इसमें जो फिक्स कॉस्ट है, टावर्स, ब्लेड्स, ऑपरेशनल कॉस्ट है, ये ज्यादा एफिशिएंसी होती है। तो अब पाकिस्तान में जितनी भी मोस्टली नए आ रही हैं ये तकरीबन 4.8 मेगावाट की आ रही है। ये बेसिकली ये यूरोपियन है, गोल्डविंड की टरबाइन है और मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। तो चाइना नहीं कहेंगे, ब्रांड नेम इज गोल्डविंड। ये बेसिकली यूरोप से आ रही होती है। तो ये बहरहाल जी चाइना में बन रही होती है जो है ना। टेक्नोलॉजी जो है वो यूरोपियन है, मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना जो है ना। चले ठीक है। अच्छा जो प्रोजेक्ट्स इन हैंड है हमारे जो है यही एक हमारा विंडमिल का 4.8 मेगावाट का, एंड इंशाल्लाह ताला ये फर्स्ट क्वार्टर 25 तक ये गो लाइव हो जाएगा। विद द इंडक्शन ऑफ द 4.8 मेगावाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा जो पावर मिक्स है वो सब्सटेंशियली कर्टेल हो जाएगा, एंड वी आर एंटिसिपेटिंग विद द 2 ऑपरेशनल लाइंस जो है लाइन 3 एंड लाइन 4 के साथ वी विल बी अराउंड 8 to 10% के ऊपर हमारी ग्रिड के ऊपर डिपेंडेंस रहेगी जो है ना। बट इंशाल्लाह ताला अगर ये आगे थोड़े से सीमेंट के हालात बेहतर होते हैं, डिस्पैचेस इंप्रूव होती हैं, तो ऑब्वियसली थर्ड प्रोडक्शन लाइन का दैट पावर मिक्स हैज टू बी चेंज जो है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा फ्यूचर आउटलुक में जो फर्स्ट क्वार्टर था दैट रिमेन डिप्रेस्ड, 29% से नेगेटिव ग्रोथ विटनेस हुई है, बट वी आर एंटिसिपेटिंग, वी आर क्वाइट होपफुल कि जो इंटरेस्ट रेट का डिक्लाइन आया है और अभी भी आगे एक और पॉलिसी में इट्स एक्सपेक्टेड कि एक और कट वी कैन विटनेस, तो उसके बाद और विद द लोअर इन्फ्लेशन रेट्स एंड थोड़ा सा ये कंस्ट्रक्शन साइट्स में थोड़ी सी एक्टिविटीज विल फर्दर इंक्रीज। Obviously, it's pretty much dependent upon the PSDP and the government support. PSDP में फिलहाल तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा क्वेश्चन हो टू इन्वेस्ट इन दी PSDP साइड, बट अगेन पे जो इन्वेस्टर साइड्स है, रिटेल साइड्स है, it is expected कि थोड़ी सी आगे in the quarters, the coming quarters, dispatches will improve जो है इंशाल्लाह ताला। तो with the improve in the dispatches, obviously local की price improve होने के बाद थोड़ा सा ये it will further increase the profitability of the company. Exports में again prices are remain tough जो है, it's a mostly a buyer market जो है, क्योंकि because of the competition and the surplus capacity available in the country, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट प्राइसेस में बहुत ज्यादा वी आर नॉट होपफुल कि वहाँ पे इंक्रीज है, क्योंकि एक तो लोकल प्लेयर्स की भी आपकी कैपेसिटी अवेलेबल है, सेकेंडली जो रीजनल प्लेयर्स हैं लाइक वियतनाम एंड दी अदर, तो उनके लिए भी मार्केट अट्रैक्टिव हो जाती है इफ द प्राइस इंक्रीज फ्रॉम हियर। जो कॉस्ट रिडक्शंस के लिए वी आर वेरी मच ऑन, जहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन फैक्टर्स आते हैं, लाइक मोस्टली इज 2 थिंग्स वेयर वी कैन इन्वेस्ट। एक तो पावर सेक्टर है वेयर वी फील कि हमने बहुत हद तक अपने आप को ग्रिड से इंडिपेंडेंट कर दिया है विद द इंडक्शन ऑफ द विंड मिल, सोलर फार्म एंड द कोल फायर्ड बॉयलर्स, तो उसकी वजह से पावर पे तो वी इन्वेस्टेड अलॉट। और बाकी रही कोल के ऊपर, फ्यूल्स के ऊपर, तो वी आर मैक्सिमाइजिंग आवर अल्टरनेट फ्यूल्स, वी आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस जहाँ पे हम ये डिफरेंट अवेलेबल जो कोल हमारे पास मौजूद है, झंपीर का हुआ या लाकड़ा कोल हुआ, उसमें वहाँ पे उसकी थोड़ी फर्दर और इनहांस करें उसकी यूटिलाइजेशन को, दैट विल अगेन इम्प्रूव help the company towards the reduction in the production cost and the overall profitability. That's it. Thank you very much. जो क्वेश्चन आंसर विंड पावर जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं जी जी गवर्नमेंट आपसे या 46 रुपीज पर यूनिट ले रहे हैं जी जी, आप ग्रिड को सप्लाई करेंगे? नहीं ये ग्रिड को नहीं होगी, बेसिकली जो हमारी प्लांट की पावर रिक्वायरमेंट है दैट इज अराउंड 48 मेगावाट, तो इसमें जो है ये हमारी ओन कैप्टिव जनरेशन होगी और इंटरनली कंज्यूम होगी जो है ना। आप ग्रिड को नहीं नहीं ग्रिड को नहीं बेचेंगे, नहीं ग्रिड को नहीं बेचेंगे, बेसिकली ये जितनी भी पावर विंड से जनरेशन होगी ये अपने प्लांट की ओन कंजम्पशन के यूटिलाइज होगी जो है। तो गवर्नमेंट को क्या सब्सिडी आप
इसमें क्या देंगे, पेमेंट क्या करेंगे? नहीं, इसमें जो है, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर वो नहीं है, आपको पावर ड्यूटी नहीं होती है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जो कैपेक्स होगी सिर्फ उसकी कॉस्ट होती है, बाकी गवर्नमेंट की एज ऑफ टुडे एज वी नो कि इसमें कोई ड्यूटी इसमें नहीं लगी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। कंपनी कितना में आप परचेज करती है? कोई नहीं, हिसाब किताब? नहीं देखिए, कंपनी अगर ग्रिड से परचेज करती है तो 46 रुपीज का एक यूनिट पड़ता है हमें, जो है ना। आप अगर खुद कर रहे हैं तो ये वो कंपनी? देखिए, इसमें इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट तो बहुत ही कम होती है, जो है ना। अगर हम देखा जाए तो हमारा आज के दिन के ऊपर जो पावर मिक्स के ऊपर इफेक्टिव कॉस्ट बनती है वो 40 रुपए की जगह 20 रुपए की बनती है, जिसमें हमारे पास कोल फायर्ड बॉयलर है, वेस्ट हीट है, और दूसरे जितनी हमारी ओन जनरेशन है। तो उसके ऊपर अगर हमारी इफेक्टिव यूनिट कॉस्ट आ रही होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि ग्रिड अपना 30% है, बाकी 70% हमारी अपनी है। तो उसकी वजह से ये ओवरऑल जो पावर मिक्स होता है उसमें ही हमें हेल्पफुल होता है। ये टोटल आपका, ये 1 मिनट हमारा खत्म करने दें। जी। एक क्वेश्चन खत्म करने दें, ये 2-3 क्वेश्चन जी 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 बोले प्लीज। ये आप जो 4.8 मेगावाट कर रहे हो उसका चार्जेस क्या है, वो कितने का इंस्टॉल हुआ? ये जो टोटल इसकी जो कॉस्ट है वो है $4.8 मिलियन का, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट है। 4.8 मिलियन डॉलर्स की ये प्रोजेक्ट कॉस्ट है इसकी, जो है ना। 4.8 मिलियन। 4.5 मिलियन डॉलर्स की। ये आपने कहा ये माइनिंग के अंदर आपका जो है वो एक्सपेंसिव बढ़ा है माइनिंग में। जी जी, बेसिकली दो चीजें, एक तो रॉयल्टी होती है, उसके अलावा फिर जो डीजल और दूसरे जो अखराजात हैं, और फिर जो कॉन्ट्रेक्चुअल के जो इनलाइन ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें इजाफा है। तो तकरीबन 20 से 25% का इजाफा जो हमारी माइनिंग कॉस्ट में आ जाता है, रॉ मटेरियल जिसमें आ जाते हैं, तो उसमें इजाफा हुआ है। तो इसमें फ्यूल में जी जो इजाफा हुआ है वो हमारा तकरीबन, अगर हम जो लास्ट ईयर से अगर हम देखें तो फ्यूल की कॉस्ट में हमारी कमी आई है, फ्यूल की कॉस्ट में हमारी कमी आई है। अगर हम लास्ट ईयर से मुकाबला करें इसको, तकरीबन ये आप समझे 15% के करीब कमी आई है। आपका जो ओवरऑल वो लगाना फ्यूल कॉस्ट लगाना, परसेंट जो है ना वाली साइड लगानी, एक फ्यूल वाली साइड लगाओ, प्रोडक्शन कॉस्ट वाली। परसेंट कम हुआ है सीमेंट का कंजप्शन मुल्क के अंदर। सीमेंट का कंजम्पशन जो मैंने आपको पहले अर्ज किया था, इसमें जो स्पेशली साइड लगा, अगर हम पिछले साल का देखें तो तकरीबन मुल्क में जो पैदावार के हिसाब से जो है, तकरीबन हमने जो सेल की है, जो पूरी इंडस्ट्री ने सेल की है, वो की है 45 मिलियन टन की, और जो उससे पिछले साल थी उसमें थी 44 मिलियन की थी। तो 1 मिलियन टन जो है वो ज्यादा मुल्क में बिका है अगर हम उसको लास्ट ईयर से मुकाबला करें। अब उसमें जो मेन चीज है वो है लोकल डिस्पैचेस, जिसको हम कहते हैं, जो कि मुल्क के अंदर बिक रहा है, एक्सपोर्ट को इफ वी एक्सक्लूड इट, तो उसमें तकरीबन 20 लाख टन से जो है ये कम बिका है पाकिस्तान के अंदर, अगर हम 2023 से इसका मवाजना करें, विच इज अराउंड 5% कमी हुई है। ये गलत बात है कि 30% मुल्क के अंदर कंजप्शन कम हुआ है, ये गलत बात है। नहीं, 5% मुल्क के अंदर कम हुआ जी। ठीक, शुक्रिया जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो सर ये जो आपकी लाइन 4 अभी आपने इंस्टॉल की अप्रैल में या मई में, तो उसकी आपको कॉस्ट क्या पड़ी डॉलर पर टन, वो बता दें। और अगर मैं आज की डेट में कोई न्यू प्लांट लगाने जाता हूँ जिस टेक्नोलॉजी का आपने लगाया है, सेम टेक्नोलॉजी का, तो उसकी डॉलर पर टन कॉस्ट क्या आएगी, इस पे थोड़ा बता दें। तकरीबन आप समझे, क्योंकि ये प्लांट जो है इसमें CFB भी शामिल है, जो है ना, वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट भी है, और तो ये तकरीबन हमें पड़ रहा है तकरीबन 85 से $90 पर टन के हिसाब से। एंड क्योंकि हमारी अटक सीमेंट की हमेशा से इट्स अ हाइब्रिड प्लांट जो है, क्योंकि होता ये फ्रॉम द चाइना वी परचेज इट, इट्स नॉट द FLS प्लांट जो SCADI से वी बॉट इट, लेकिन इसमें जो 2-3 चीजें होती हैं जो क्रिटिकल, जैसे मिल्स होती हैं, दैट इज फ्रॉम द लोशे यूरोपियन टेक्नोलॉजी आती है, फिर इसके वे फीडर्स होते हैं, दैट इज फ्रॉम शेंग,
तो डिफरेंट ये इज अ हाइब्रिड प्लांट वी से, तो इट्स अराउंड अबाउट $100 पर टन आप कह सकते हो उसको जो है ना, $85 to $90 पर टन आपने 85 to $90 पर टन, क्योंकि इसमें अभी वो शामिल नहीं है साइलोज और दूसरी चीजें शामिल नहीं है। तो साइलो के बाद आप समझो अगर आप ब्राउन फील्ड करो तो अराउंड अबाउट $130 का आपको पड़ेगा जो है ना, जिसमें आप टोटल फ्रॉम द स्टार्ट करें। मैं सिर्फ लाइन 4 की बात कर रहा हूँ। लाइन 4 आप ये कह रहे हैं हमें जो कॉस्ट पर टन आ रही है वो अराउंड $90 पर टन की है। अच्छा, मैं कैलकुलेट कर रहा था 17 बिलियन इन पीकेआर कॉस्ट आई थी, राइट? और आपका 1.2 मिलियन का प्लांट था। इस पे अभी वो पार्शियल वो है ना एडिशन है अभी, क्योंकि जून तक जो है हमारी वो सीमेंट मिल अभी हमने इसको कैपिटलाइज नहीं की थी, इसलिए आपका कैपिटलाइजेशन अमाउंट कम आ रहा ओके, तो टोटल अगर पीकेआर में मैं अमाउंट पूछूं तो कितनी बनती है? है। इट वुड से अराउंड तकरीबन ये आपका 20 अरब तक की पड़ेगी जाना। तो सर 20 अरब से मैं अगर कॉस्ट लगाता हूँ तकरीबन $60 पर टन, मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूँ उस हिसाब से बन रहा है $280 के डॉलर पे, आई बिलीव। सस्ते डॉलर पे आपने जो इक्विपमेंट है वो नहीं, इम्पोर्ट किए इसमें होंगे। जो हमारी एलसी ओपन हुई थी उस टाइम पे तो एक्सचेंज रेट थोड़ा ज्यादा था ना, उस वक्त कम था जो है ना, 170 के ऊपर था। 170 पे तो जैसे मैं ना लगा रहा हूँ, बढ़ा वो आपके फर्दर 275 से आपको तो डाइल्यूट हो रही है ना, तो हमारी एक्चुअल कैपेक्स में तो एक्सचेंज लॉसेस भी हैं। ओके चले, मैं फिर इसको आपसे बाद नहीं में नहीं, डिस्कस इसको जो है ना आप डॉलर बेस पे कैलकुलेट करोगे तो इट वुड बी इजियर। इट्स अ बॉलमार्क नंबर, जैसे हम कहते हैं चाइनीज प्लांट के लिए इट्स $90 to $100 पर टन इंक्लूडिंग WHRS आता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द यूरोपियन इट्स अराउंड अबाउट $150 पर टन। अच्छा, WHR जो है इसमें आपने प्लांट में लगाया, इसमें कैपेसिटी कितनी है WHR की? WHR की इसकी कैपेसिटी फ्रॉम द सिंगल लाइन 4 मेगावाट है, 4 बट मेगावाट। ये हमारे पास इसमें CFV भी साथ में इंक्लूडेड है, वो तो कितने वी मेगावाट हैव का है? 15 मेगावाट का टोटल ये पावर प्लांट है कोल का टोटल मिला के, टोटल मिला के? जिसमें 11 मेगावाट यू वुड से कोल, CFB के थ्रू कंट्रीब्यूशन आएगी और 4 मेगावाट जो है आपकी WHR के थ्रू आएगी। राइट राइट। और प्राइसेस का थोड़ा आइडिया एक बता दें, लाइक एक्सपोर्ट्स मार्केट में सीमेंट्स और क्लिंकर की क्या प्राइसेस हैं, और लोकल मार्केट में MRP क्या चल रही है और रिटेंशन क्या है आपकी? अभी जो एक्सपोर्ट की प्राइसेस देखी है तो क्लिंकर यू वुड से इट्स $30 to $32 पर टन की चल रही है। ओके ठीक है, और सीमेंट जो है अराउंड $38 to $40 पर टन जो है। अब वो डिपेंड करता है थोड़ा मार्केट्स के ऊपर और दूसरे के ऊपर, लेकिन इस रेंज ब्रैकेट यही आ रही है FOB प्राइसेस जो है। बाकी जो हमारी जो लोकल MRP है दैट इज 1350 पर टन है, राइट। और जो पर बैग सॉरी पर बैग और और रिटेंशन? 27,000 आपकी वो आ जाती है जो पर टन प्राइस आ जाती है। ओके। सर जी जी, जो इराक का जो प्लान बेचने का वन ऑफ द मेन रीजन था वो हमारा बेसिकली लाइन 4 में जो हमने फर्दर इन्वेस्टमेंट की है उस पर्पस के लिए भी यूटिलाइज जो है ना, क्योंकि कंपनी को काफी ज्यादा हैवी फाइनेंसिंग उठानी पड़ी थी। इवन दो रेट इज लो, बट अगेन आगे के बिकॉज ऑफ दी लोअर डिस्पैचेस और जो प्रॉफिट्स की बेस पे, तो वी डिसाइडेड कि जी जो लैब का प्लांट के जो पैसे आते हैं दैट वी विल इन्वेस्ट इन दी लाइन 4 जो है, और आगे जो विंड मिल जो लगा रहे हैं उसके लिए भी इसकी ये जो इन्वेस्टमेंट हो आप रही है। इराक में जब आपने प्लान लगाया था तो वहीं से आपकी प्रोडक्शन हो रही थी, वहीं से आप एक्सपोर्ट करते होंगे, वहीं पे यूज होता होगा, तो आपको कास्ट कम नहीं आती होगी? नहीं, इराक में जो था वो बेसिकली ग्राइंडिंग यूनिट था, इट वाज नॉट अ कंप्लीट प्लांट, तो उसके मार्जिन्स डेफिनेटली अच्छे थे, मार्जिन अच्छे थे जो कि, लेकिन ये प्लांट जो था ये लोकली तमाम सेल करता था विद इन द इराक, वहां से एक्सपोर्ट नहीं होती थी। तो अब उस टाइम पे वी हैव टू टेक अ डिसीजन, क्योंकि थोड़ा सा इराक इज अ डिफरेंट टेरिटरी, और वहाँ पे बहुत सारे क्योंकि इंपोर्ट लाइसेंस के भी इश्यूज थे और वो तमाम चीजें थी जो कि फ्रॉम सिटिंग इन पाकिस्तान इट्स नॉट वेरी, उसमें आपका इतना ज्यादा आउटपुट नहीं रहता, लोकल पार्टनर्स की ज्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है उस तमाम मैटर्स में। तो बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट और एक अच्छी प्राइस हमें मिली इसके ऊपर, वी अचीव अ गुड हैंडसम गेन। 2 मिलियन का डिविडेंड हमने पहले इराक के प्लांट से लिया है, एंड अगेन जो हमने प्लांट सेल किया है वो भी अबव देन दी पार वैल्यू से किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है वो एक अच्छा हमें रिटर्न मिला है, और वी डिसाइडेड द बोर्ड डिसाइडेड कि जी वहां पे हम इसको डिसकंटिन्यू करके जो भी पैसा सरप्लस मनी आ रहा है दैट वी इन्वेस्ट इन पाकिस्तान।
ये आप जो ये ब्रीफिंग के लिए जो आप अपना मैटर होता है प्रिंटेड मैटर हमें दे दिया करें, तो हम उसको देख के आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं, क्योंकि ये तो आपका स्क्रीन पे गुजर जाता है, हमें तो याद नहीं रहता हमारे जहन से। ये प्रेजेंटेशन हमने जो है ना ये और वेबसाइट नजर भी कम नहीं, होता है। ये प्रेजेंटेशन अवेलेबल हमारी अटक सीमेंट की वेबसाइट के ऊपर भी है सर हमारे और पास पुकार पे भी हमने इसको ये पीएसएस में तो भी इसको चीज़- अपलोड इसमें की हुई है जो है ये ना। तो आपने सही कहा, लेकिन हर एक के पास ये चीजें अवेलेबल नहीं होती। कहीं पे लाइट का मसला होता है, कहीं पर टाइमिंग का मसला होता है, तो अगर पेपर प्रिंट हमारे हाथ में होगा तो हम राह चलते कहीं भी बैठ के ये पढ़ हम सकते नोट हैं। डाउन कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मीटिंग में जो है ना अच्छा, हम आपके इसके करेंगे जो है ना। करेंगे ना। Assalamualaikum, sir. जी सर। This is Meroz Khan from Foundation Securities. सर ये विंडमिल के ऊपर मुझे पूछना था कि इसका नेट आउटपुट कितना होगा रफली स्पीकिंग। इसकी जो एफिशिएंसी है इट्स यू वुड से इट्स अराउंड 38%, जो भी हमने वहां पे थ्रू डास और थ्रू मासेस जो हमने चेक किए, तो 38% इसकी आउटपुट होगी एफिशिएंसी। एज कंपेयर जो सोलर की अगर होती है तो वो तकरीबन 18 से 20 होती है, तो इट हैज मोर एफिशिएंसी, लेकिन इट टोटली डिपेंड अपॉन द विंड। तो अभी तक तो हमारी जो रिजल्ट्स हैं वो काफी इंकरेजिंग ये हैं कि 38% एट 50% प्रोबेबिलिटी वी विल अचीव दैट। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं जी के आगे कुदरत है, कितनी हवा रहती है कितनी नहीं रहती है। तो ऑप्टिमम इसकी 4.8 है, अगर 24 घंटे चलती हुई इसी विंड के बाद 4.8 मिलेगी, बट बेस्ड ऑन द ईयरली डेटा इस 38% जो है इसकी एफिशिएंसी जो है। सर ये आपने अल्टरनेट चीपर फ्यूल्स के जिक्र किया था। जी हेलो ठीक कर रहे हेलो जी जी आवाज आ रही है, आप बोले। तो सर जिम्पीर और लाखड़ा के कोल के ऊपर थोड़ा सा बताएंगे इसकी करंट लेवल क्या है प्राइसेस की, इसमें सल्फर ऐश का कंटेंट का क्या लेवल है, प्लस में ऑन द टॉप ऑफ इट व्हाट इज द जीसीवी ऑफ दिस कोल, क्योंकि अभी रिसेंट पास्ट टाइम में ठट्टा सीमेंट की सीबीएस में भी उन्होंने इसी चीज को हाईलाइट किया, देयर कोल मिक्स इज more than 70% relying on these coal and the prices which they have mentioned, it's quite surprising for us as compared to the rest of the industry, जहाँ पे different coal की availability है और GCV को adjust करें तो उसकी prices मेरी सेंस नहीं बना रही है। नहीं आपका क्या था, ठट्टा खुश था इस पे या वो था? नहीं मैं तो पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जिम्पीट और लाखड़ा का जो कोल आप लोगों ने कंज्यूम किया है। नहीं इसमें देखिए ऑब्वियसली पाकिस्तान में कोल तो बहुत मौजूद है, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो हमारे पास क्वालिटी ऑफ द कोल जो है वो इतना अच्छा नहीं है जो कि सीमेंट में यूटिलाइज हो सके। एक तो ये सल्फर कंटेंट इसका जो है वो काफी हाई है एज कम्पेयर टू दी इम्पोर्टेड कोल। जो नॉर्मल अगर बहुत अच्छा आप झम्पीर का कोयला या लकड़ा का भी ले ले तो इट्स नॉट लेस देन 3% एंड इट गो हाई अप टू 4.5-5%, विच इज पॉइजन फॉर द सीमेंट जो है। अब अवेलेबिलिटी इज देयर, ठीक है, वहां पे दे हैव देयर ओन चैलेंजेस माइनिंग ऑपरेशंस, क्योंकि यहाँ पे बड़ा मैनुअल किस्म का है तो वो इतनी प्रोडक्शन भी उन पर्टिकुलर माइन से होती नहीं है। एंड फर्दर जो भी इन्वेस्टर है ये सॉर्ट ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड है, जहाँ पे कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं घुसे हुए, तो दे डोंट हैव द प्रॉपर मैकेनाइज्ड फैसिलिटी ओवर देयर फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द कोल। प्लस अगर वहां पे कोई लैब भी ये लोग नहीं होती है जो है ना, जिसकी बेस पे वो असेसमेंट कर सके कि किस टाइप का कोल किस माउथ ऑफ माइन से निकल रहा है। इट्स अ वेल माइनिंग जो है ना। अब इसमें जो है जो इसीलिए बिकॉज वी आर वेरी मच कॉन्शियस अटक सीमेंट ऑन देयर क्वालिटी जो है ना, तो वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द सीमेंट। अब इसी रेशियो की वजह से, इसी रिस्क की वजह से कि जी सल्फर ज्यादा ना हो, तो वी कैन मैक्सिमाइज अप टू 10 to 15%। अनलेस एंटिल आपकी माइंस के ऊपर फैसिलिटी हो उसको ड्राई करने की, उसको सल्फर वॉश करने की, तो देन द आउटपुट मे इंक्रीज, बट दिस इज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी टू इंस्टॉल अ प्लांट ओवर देयर फॉर द वॉशिंग ऑफ द कोल। और बाकी जीसीबी जो है इनकी तकरीबन ऑन अ गार बेसिस एज बेसिस के ऊपर इस रेंजिंग फ्रॉम 4,500 to 5,000 के बीच में आ रहा होता है, with sulfur of more than 3%. If we compare the specs with the RB2 RB से करें तो वो हमारा 6,000 NCV होती है नेट with sulfur of less than 1%। तो इसीलिए जो है वो ठट्टा ऑब्वियस
दे हैव देयर ओन सिस्टम, उन्होंने वहां पे उसको मैक्सिमाइज किया और उसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे या फ्यूल कॉस्ट पे यू कुड सी कि उनका बहुत बड़ी कॉस्ट में वेरिएशन आ रहा है। ऑब्वियसली जहाँ पे 15,000 का कोयला मिल रहा है और साउथ अफ्रीकन इज अराउंड अबाउट 34-35,000 आज की प्राइसेस के ऊपर, तो उसमें देयर इज अ बिग डेल्टा। बट फॉर अस ऑब्वियसली वी वांट टू सिक्योर आवर एसेट्स एज वेल, किलिंग को नुकसान भी ना पहुंचे, क्योंकि विद द हाई सल्फर मींस नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ द सीमेंट बट आल्सो दी आप अपने क्लिन को भी इफेक्ट कर रहे होते हो जो है ना, तो वी डोंट वांट दैट। तो उसमें आपकी 10 से 15% की आपकी ये यूटिलाइजेशन हो रही होती है। सर इसके अलावा ये जो आपने बताया WHR को इसमें 11 मेगावाट को क्रिएट किया है, की कॉस्ट क्या होती है अगर से मैं इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट ये तकरीबन आप समझो इट इज अराउंड $15 मिलियन, 10 से 15 मिलियन डॉलर की आपकी इसकी प्लांट कॉस्ट की आप बात कर रहे हो ना? मैं से WHR स्टैंडअलोन कॉस्ट ऑफ WHR कैपेक्स आप इसको कर लो, कितने कर ले आप, 7 मिलियन डॉलर कर ले आप, $7 मिलियन। देखिए इसमें बेसिकली इट्स इंजीनियरिंग थिंग, क्योंकि अगर आप सिर्फ WHR लगा रहे हो तो यू विल इंस्टॉल 4 मेगावाट टर्बाइन और 4 मेगावाट का आप जेन लोगे, ठीक है। जब आप बाकी स्टीम तो आपकी एक पाइपलाइंस के थ्रू आ रही है, जब आप CFB साथ में कर रहे होते हो तो आपको सिर्फ उसके साइजेस बढ़ाने होते हैं, मेगावाट के, टर्बाइन के और इंजन के बढ़ाने होते हैं। तो ऑब्वियसली इट सिंगल कैपेक्स में आप थोड़ा मोर एफिशिएंसीज अचीव कर लेते हो, तो इट ऑलवेज बी अ गुड कॉम्बिनेशन जो है ना, क्योंकि सिर्फ आपने एक कोल फायर बॉयलर सेपरेट लगाना होता है, बाकी रेस्ट ऑफ द सिस्टम इज रिमेन सेम। ये सर पहले भी आप लोग के पास 5 मेगावाट का एक CFB ये सेम फॉर्मूला के तहत भी सेम फॉर्मूला हमने लाइन 3 पे भी अप्लाई किया था कि इट्स बेटर टू हैव अ हाई कैपेसिटी जनरेटर, हाई कैपेसिटी टरबाइन एंड इंस्टॉल अ CFB ऑफ अ लिमिटेड साइज। एनवायरनमेंट पोल्यूशन के लिए आपने कुछ क्या है? एनवायरमेंट ESG के लिए अटक सीमेंट अगेन हमेशा बड़ी हो रही है, सपोर्टिव रही है एंड वी वर्क ऑन इट। एक तो ये कि जितने भी हमारे प्लांट्स हैं उसमें बैक फिल्टर्स लगे हुए तमाम, जो है जो आपकी जो ऊपर क्लीन जो वेस्ट हीट जो जारी होती है, जो क्लिंकर की शेप में, धुएं की शेप में आते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन दी बैग्स, बैक हाउसेस में जो है ना। फिर सेकेंडली इसको कॉन्ट्रा करने के लिए फर्दर, क्योंकि ऑब्वियसली एक हम हैजार्डियस कोयला को जला रहे होते हैं, तो उस कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करने के लिए जो हमारे पास वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट्स है, ये तकरीबन हमें सालाना 1.5 लाख के करीब CR जनरेशन कर रहे होते हैं जो है ना, जो हमारे पास 3 आ गए। एक प्लांट हमने रजिस्टर भी कराया है विद द UNFCCC, जिसके तकरीबन सालाना जो है तकरीबन मंथली उसके 36,000 के करीब थे, 1.5 लाख के करीब CRs हमारे पास थे उसके जो है ना। फिर सिमिलरली जो सोलर फार्म लगाया, तो सोलर फार्म जो है वो तकरीबन 23.5 मेगावाट का, तो अगेन उसकी वजह से जो आप केई कम यूज कर रहे हो, क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट्स कम करने के लिए ये कि केई के भी अपनी एक कार्बन पोल्यूशन होती है जो कि वो हवा में फेंक रहा होता है उनके अपने फ्यूल मिक्स की वजह से, तो वो बेसिकली आपके सोलर फार्म उसको भी ऑल्टरनेट कर रहे हैं। अगेन फिर विंड फार्म जो है वो भी आपके कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस कर रहा होता है। इमिशन कितना परसेंट होगी इमिशन का एग्जैक्टली अभी तो मैं नहीं बता सकता, टू बी ऑनेस्ट जो है ना, लेकिन इट इज नहीं, देखिए 0% ऑब्वियसली देयर इज नथिंग, देयर इज नो 0% एट ऑल। दुनिया में कोई भी चीज 0% नहीं है, इट हैज टू बी सम इमिशंस। अभी मैं बात कर रहा हूं तो इससे भी इमिशन निकल रही है, साउंड इज आल्सो पोल्यूशन, तो वो तो 0 कभी भी नहीं हो सकती है। तो हम लोग एनवायरनमेंट को नुकसान, बिल्कुल, जो कचरा रोड पे फेंक रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं, वो भी पोल्यूशन है। ये फर्स्ट क्वार्टर में देखिए इसके इक्विपमेंट हैज बीन रीच एट साइट, ऑल द इक्विपमेंट्स हैज रीच एट साइट। अब इसका जो इंस्टॉलेशन इरेक्शन टाइम है, तो वी आर वेरी मच होपफुल कि जैन फेब में इंशाअल्लाह ताला इट विल स्टार्ट इट्स कमर्शियल प्रोडक्शन जो है ना। रात में आपको बताया जैसे कि अपने इंटरनल एनालिसिस रात में तो क्या यार, अब तो इराक भेज दिया, तो अब हमें वहाँ की प्राइसेस का कंसर्न नहीं है जो है ना, वहाँ पे एक्सपोर्ट भी नहीं होती है, वो भी नहीं होती। मार्जिन है स्ट्रॉन्ग,
क्योंकि वहां पे जो क्लिंकर खरीद रहे हैं वहां पे लो कॉस्ट क्लिंकर उनके पास आ रहा होता है, तो इट्स जस्ट ग्राइंडिंग जो है वो नहीं, इराक इज अ वेरी लुक्रेटिव मार्केट, नो डाउट अबाउट दैट। वहाँ पे डिमांड अच्छी है क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स भी हैं और काफी आफ्टर द वॉर जो है वहाँ पे कैपेसिटी टू ग्रो है, एंड गवर्नमेंट हैज अ फंडिंग एज वेल। अगेन पॉलिटिकल इश्यूज आर देयर। देखिए उनके डिफरेंट मॉडल्स हैं, अटैक सीमेंट हैज देयर ओन फिलॉसफी, ओन कॉर्पोरेट कल्चर्स हैं, लकी के अपने एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं, तो आई रियली कांट कंपेयर us with them जो है, या we cannot comment जो है ना। It's very attractive market, यानी बहुत अच्छी मार्केट है। बांग्लादेश हुई, ईस्ट अफ्रीका हुई और श्रीलंका हुई, it's a continued market. Prices are challenge, orders demands from their side are there, हमें कटेल करनी पड़ती है उनके ऑर्डर्स को बिकॉज ऑफ द प्राइसेस, क्योंकि हमारी पावर और जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली वी हैव टू लुक अपॉन इट कि जी कौन सी प्राइस में वी कैन मटेरियलाइज द सेल जो है। देखिए वो जहां पे भी मार्केट्स हैं, जहां पे भी हैं, ऑब्वियसली अटैक सीमेंट विल ट्राई टू गो ओवर देयर एज वेल। अभी यूएसए में ऑब्वियसली एवरीवन नोज कि डीजी ने और वहां पे 2-3 कार्गोस भेजे हैं और ये पावर भी वहां पे कर रहा है, तो वी आर आल्सो लुकिंग इनटू। जी अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा सा सेंस आप अगर दे सके, पावर मिक्स क्या है मौजूदा और कोल का मिक्स क्या है, यानी लोकल अफगान या इंटरनेशनल? देखिए जो पावर मिक्स अगर अभी हम बात करें, जो एज ऑफ टुडे is around about 15 to 20% you would say is a power mix जो ग्रिड के ऊपर है। दो रीजन इसकी, एक तो लाइन 4 हमारी 2 लाइंस आर ऑपरेशनल, 3 and 4 which are more efficient line because of the डिमांड साइड की वजह से 2 लाइंस ही ऑपरेशनल है, तो उसमें जो अभी पावर मिक्स अचीव हो रहा है वो 15% है के करीब है। 15% comes from grid, इसके अलावा जाहिर है दूसरी सोर्सेज, उसमें जरा अगर मिक्स का हम कहिए। इसमें देखा जाए तो हमारे पास WHR ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूटिंग 30%, जो CFB है वो भी आपके पास 38% आ जाता है, एंड सोलर इज ऑन अबाउट 13-15% जो है ना। तो बेसिकली जो प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट इज दी सोलर, तो हमने अपने ऑपरेशंस को इस तरीके से डाइवर्ट किया है कि मैक्सिमम जो हम सोलर को यूटिलाइज करें इन द डे टाइम, जो हमारी एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस है उसको इस तरीके से अलाइंड किया है। सोलर एंड WHR जो फ्री है, देन फिर CFB आता है एंड देन फिर ग्रिड आता है। तो CFB इज अ वेरिएबल फैक्टर एंड ऑब्वियसली सूरज इज आल्सो अ वेरिएबल फैक्टर, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते जो। एंड सर द कोल मिक्स में आप you would say around 85% is the imported coal and 15% is the other alternate fuels right now. Mainly the ones we discussed, Jampir, Lakra and the other agri waste, mud press and other agri waste. You also have that. तो वो कितना फीसद है जो is alternative? देखिए all almost जितने भी alternate fuels हैं वो एक ही cost कर रहे होते हैं। ठीक। तो it's all depend upon the availability and suitability to the plant जो है ना। And we have to also look on into which type of imported coal we are using. If we are using USA coal, which has a little bit higher sulfur, तो obviously फिर local mix थोड़ा सा कम हो जाता है। If we mix with RB2, तो it can go up to 30%. So you mentioned कि alternative fuels की भी वही cost आ जाती है, क्या इससे हम ये infer करें कि alternative fuel की cost 34,000 रुपए पर टन है? नहीं, ऑल्टरनेट फ्यूल 14,000 तो ऑब्वियसली नहीं है, बहुत कम। यानी आप उसको कहें अगर NCV लाइक टू लाइक कर लें तो इट वुड बी कॉस्ट यू अराउंड 23 to 24,000 रुपीस पर टन। थैंक यू सर। ये कोल का प्लांट लाइन 3 पे हमारा जो है वो है, वी हैव अ सेम टरबाइन कैपेसिटी ऑफ 15 मेगावाट, तो बैलेंसिंग नंबर इज दी CFB। तो 4 आइटम की लाइन से 4 मेगावाट मिलेगा फ्रॉम WHR।
ओके एंड तो रिमेन बैलेंस इज दी सीएफबी। ओके एंड अब ये उसकी आप ऑब्वियसली वो 100% नहीं चल पाता, उसकी अपनी एक डिग्रेडेशन होती है, तो आप 12 यू कैन कंसीडर। दोनों लाइन पे वी कैन से के 12 मेगावाट आपके पास कोल प्लांट है। बिल्कुल कह सकते हैं, राइट 12 से कम ही, 10 आप कह लो। 10 to 12। सर ये आपने जो है यहाँ जो बताया, इसमें आपने जो गेन किया बसरा का जो प्लांट जी जो जी, आपने जो है, इसमें कितना आपको कैपिटल गेन कितना हुआ है? नहीं देखिए 4.2 अरब का हमारा टोटल गेन है जो हुआ है, डाइवर्समेंट गेन। इन्वेस्टमेंट कितनी थी? इसके इसमें 1.8 अरब की जो है ना, तो इसमें बेसिकली दो कंपोनेंट है। एक तो वही एक्सचेंज रेट का है, क्योंकि जो इन्वेस्ट हुआ था वो 110 रुपए के हिसाब से हुआ था, और जब खुला हुआ तो वो 275 के हिसाब से या 280 के हिसाब से था। तो 2.6 अरब समझे आपका हमारा जो है वो एक्सचेंज गेन आ जाता है, और बाकी जो 1.6 अरब है वो हमारे पास जो डाइवर्समेंट गेन आ जाता है। वो ये कितने अरसे पे मुहित था? ये हमारा प्लान लगा था 2016 से ऑपरेशनल था, 16 से था, 2019 से ऑपरेशनल था, 2019 से था स्टार्ट। हमने 2016 से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, 2019 से। सर अगर देखने में आए तो ये 6-7 साल या जो भी 8 साल कर ले, तो अगर देखने में आए तो अगर इसको अगर हम करेंसी का जो है अपना जो अपना गेन मिला क्योंकि डॉलर के पैरिटी में, तो उस हिसाब से तो सर ये तो कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट ना हुई ना? नहीं, डॉलर के आपका 4 अरब का डॉलर तो वो तो मिल गया ना, अगर डॉलर यही अगर होता तो फिर तो कोई नहीं, उसमें भी देखें बात ये है कि 2 मिलियन का एक हमें डिविडेंड भी मिला है जो है ना, जी कंपनी ने 2 मिलियन डिविडेंड भी डॉलर। रिसीव किया है, 2 मिलियन डॉलर का। उसके अलावा फिर जो प्राइस जो है वो भी हमें ऊपर ही मिली है, 30 सेंट ऊपर है, जो कि उसकी शेयर प्राइस जिस पर हमने इन्वेस्ट की थी। नहीं वो आपकी बात सही है, तो मैं समझ रहा हूँ। इट्स अ डिसेंट गेन। देखिए बात ये है कि आप जब बोर्ड ने डिसीजन लिया तो उसके पास तो एक क्लियर पिक्चर थी ना। जी बाकी बात सही है कि अगर ये डॉलर भी अगर नहीं होता मुनाफा, तो शायद हमारी थिंकिंग डिफरेंट होती, बिल्कुल। उससे शायद हमारी थिंकिंग डिफरेंट होती कि जी बेचे ना बेचे, कि 5 साल में इतना मुनाफा क्या काफी है या नहीं है। लेकिन जब हमने ये डिसीजन की तरफ बोर्ड ने जब पूरा देखा, तो इट्स अ वेरी डिसेंट रिटर्न। और इस टाइम के ऊपर क्योंकि एक जब आप एक प्लांट लगा दो और दूसरे प्लांट पे लोड पड़ लो, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। हमारा ब्रेड एंड बटर तो पाकिस्तान ही है, ठीक है, तो वहां का पैसा यहाँ पे यूटिलाइज करना इट्स मोर सूट टू अस इन आवर बिजनेस मॉडल। यहाँ साहब मेरा जो है, आपकी बात बिल्कुल सही है, जैसे मतलब बोर्ड ने कुछ सोच के डिसीजन करा। आई माइनॉरिटी शेयरहोल्डर, मेरा तो कोई मगर मेरा एक ओपिनियन ये है कि जब हमने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बनाया था उस वक्त इराक के जो हालात थे, रोज जो है अल्लाह माफ करे बहुत ज्यादा जो है ना हालात थे, जब हम मीडिया में रहते थे जी जी, उस वक्त इतना खतरनाक और रिस्की जो है ना हमने इन्वेस्टमेंट किया। कुदरत को जो मंजूर होता है वही होता है। अब तो सर इराक के बाद पता नहीं कितने जो है ना महाज खुल गए फलस्तीन में, जो उसको हम डिस्कस नहीं करते। सही है। तो अब तो हमें कुछ लगता ही नहीं है। तो कहने का मकसद ये, हमने इतना जो है ना रिस्की जो है ना डिसीजन लिया, कुछ भी हो सकता था ना। तो उस वक्त तो जो है क्या कहते हैं, मैं नाम नहीं आ रहा मुझे, जो जिहादी जो तंजीमें थी और जो इनका नाम लेना मुनासिब है कि नहीं, तो वो बड़ा एक्टिव थे उस वक्त। जी जी, उस वक्त कुछ भी हो सकता था। वो धमकियां भी देते थे कि हम प्लांट उठा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उस वक्त, आज तो हालात बहुत अच्छे हैं, उसका हमें किसी आपने अपने पार्टनर को ही बेचा है जो आपका जो वहाँ का लोकल पार्टनर था? इसमें थोड़ा सा मैं ये अर्ज कर दूं, जब ये हमने डिसीजन लिया था तो उसके पीछे भी एक काफी बैकग्राउंड था। वो बैकग्राउंड ये था कि इराक में जो पिछले, जब हमने ये डिसीजन लिया था इन 2014 में, जब लिया था डिसीजन हमने, तो उस तक इराक में पाकिस्तान से अटक सीमेंट की सेल बहुत अच्छी थी। 3 साल तक हमने इराक में ऑलमोस्ट मिलियन टन हमने बेचा है वहां पे सीमेंट जो है 3 सालों में। और वहां पे फैल्कन एज अ ब्रांड के तौर पे मशहूर था जो है ना, फैल्कन जो है कहलाता था वहां पे। तो एक बड़ी जबरदस्त डिमांड थी वहां पे। फिर उसके बाद जब ये एक प्रोजेक्ट का आइडिया है, क्यों ना वहां पे एक ग्राइंडिंग यूनिट लगा दे, एक मार्केट एक डेवलप हो गई है, एंड इट्स बेटर टू सिट ओवर देयर, वहीं पे काम करें जो है। तो जो हमारे साथ जो माल लेकर जाता था, दैट बिकेम पार्टनर टू अस, एंड दैट्स हाउ द प्रोजेक्ट स्टार्टेड जो है ना। रिस्क तो देखिए हर जगह मौजूद ही होता है, पाकिस्तान के अपने रिस्क हैं, इराक के अलग हैं, श्रीलंका के अलग है, हर जगह के अपने रिस्क तो अलग मौजूद ही होते हैं।
तो उस टाइम पे भी एक हमने बड़ी कैलकुलेटेड तरीके से काम किया था, इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा अमाउंट तक कंसिडरिंग दी, यानी टोटल अटक सीमेंट की इन्वेस्टमेंट $18 मिलियन की थी, जो हमारी साइज ऑफ द कंपनी इज नॉट बिग, जहाँ $100 मिलियन हम यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं $18 मिलियन, और वहां के रिजल्ट भी अच्छे थे, ये बात नहीं रिजल्ट अच्छे थे, लेकिन ऑब्वियसली अटक सीमेंट का एक अपने कॉर्पोरेट कल्चर है, ये हम लोग थोड़ा सा मोर सेफ्टी की तरफ ज्यादा जाते हैं एज कम्पेयर टू एग्रेशन के ऊपर, तो सेफ्टी कम फर्स्ट, तो उसकी बेसिस के ऊपर ये तमाम चीजें करते हुए ये हमने पे डिसाइड किया, और इसमें भी मैंने कैलकुलेट सोच समझ के साल 1.5 साल में इस डिसीजन के पहुंचे कि इट्स बेटर कि इसको हम सेल कर दें। अच्छा सर, रिहान साहब आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। अभी हम इस्माइल इंडस्ट्री की मीटिंग में थे, मिफ्ता इस्माइल साहब की, मकसूद इस्माइल साहब के भाई से हमने सवाल किया, उन्होंने दुबई में सर प्लांट में कोई यहाँ लिंक नहीं बनता, मगर मैं आपको एक थोड़ा सा जो है, तो हमने इनको कहा कि उन्होंने हमने इजाजत ली कि दुबई में हम अपना प्लांट लगाएंगे, मतलब किस चीज का, बिस्किट का, वो बिस्किट बहुत जाता है, वही आपकी जो स्टोरी आ गई कि इराक में जो है ना बिस्किट बहुत ज्यादा बिकता है, तो हम वहां पर जो है क्या है बिस्किट जो है फैक्ट्री जो भी है, ठीक है, लैंड भी लेंगे, मशीन में, तो फिर हमने फॉरेन एक्सचेंज स्टेट बैंक अलाउ नहीं करेगा, बोला नहीं हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज जो एक्सपोर्ट होता है ना, बबल गम और जो जितना भी कन्फेक्शनरी, वो वहीं पे हमारा स्टेट बैंक के पास पड़ा, स्टेट बैंक वहीं से हम ले जाएंगे। तो सर आपके पास इतना बड़ा चंक आया जो बसरा का जो प्लांट है, तो आपने सर कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं की कि अफ्रीकन कंट्री कंटेंट के अंदर या कहीं और आपने सर थोड़ा सा इसको वॉच नहीं करा? देखिए ये तो ये पैसे वहीं से जो है शिफ्ट हो जाते, क्योंकि इतना बड़ा प्लांट, इतना बड़ा जो है ना अमाउंट, नहीं देखिए दो चीजें तो हैं, देखिए जो हमने जब ये पैसे पाकिस्तान से बाहर भेजे थे, तो बाकायदा ये एक अप्रूवल के तहत गए थे, स्टेट बैंक से ईसीसी की अप्रूवल के तहत गए थे, और उसके तहत जो भी पैसा अटक सीमेंट कमाता है फ्रॉम सकल कितान, जो हमारी सब्सिडी थी, उसको वापस पाकिस्तान में आना था। तो अटक सीमेंट अगेन इज अ वेरी टैक्स कंप्लाइंट कंपनी, जो तमाम फॉर्मेलिटीज को और तमाम मामलात को बखूबी जानती भी है और उसको बिल्कुल सही तरीके से करती भी है। तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं था कि उसका पैसा हम कहीं और लेकर बाहर चले जाते, ये अल्टीमेटली पहले पाकिस्तान के अंदर ही आना था, जैसे डिविडेंड पाकिस्तान के अंदर आया, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा $24 मिलियन पाकिस्तान के अंदर ही आया। उसके बाद अगर ये कोई फैसला करना है कि बाहर लेके जा सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन तो गलत है ना, मुल्क के साथ ज्यादती है ना। अगर मैंने एक स्टेट बैंक ने मुझे याद दी कि जी जो भी पैसा आपने रिपेट्रिएशन ऑफ डिविडेंड एंड रिपेट्रिएशन ऑफ कैपिटल शुड हैव टू कम बैक टू पाकिस्तान, तो हम ये अटक सीमेंट एज अ ग्रुप ये चीज नहीं कर सकते। तो इराक के अंदर जो है, आप जो यहाँ से वहां पे बैठिए, वहां पे आपको पहले ही बैठ जाना चाहिए। तो ये जो है आपके पास जो इराक का प्लांट है, इसके लिए यहाँ से आप क्लिंकर भेजते थे वहाँ, जो आपने बताई कि आप लगाया आपने ग्राइंडिंग यूनिट। वो इराक का प्लांट जो है, वैसे तो देखिए अब इराक इज क्लोज फॉर अस, ठीक है, लेकिन जस्ट फॉर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, वो वहां पे ग्राइंडिंग यूनिट था, और वहां पे पाकिस्तान से जो क्लिंकर जाता वो बहुत महंगा पड़ता, तो वहां पे जो मार्केट थी वो बेसिकली सऊदी अरब, ईरान, वियतनाम, यहाँ से करीब की जो इलाके थे जहाँ पे फ्रेट कॉस्ट कम होती है, जहाँ की उनकी पैदावारी कॉस्ट भी कम है, तो वहां से फिर वो उसके हिसाब से चलता था, तो दोनों का इक्वेशन अलग अलग था। हमने कोशिश की थी शुरू में, हमने ये सोचा था कि पाकिस्तान से क्लिंकर वहां पे ले जाए, लेकिन वो फिर वहां पे ले जाके उस कीमत पे बेचना पॉसिबल नहीं था। जूम के क्वेश्चंस ये कुछ रूमर्स चल रहे हैं, अटक रिफाइनरी वालों को तो आ गया कि ठीक है, आपके बारे में आप बताएं। नहीं ये देखिए, एज फार एज आवर कंसर्न हमारी कोई नॉलेज नहीं है इसके ऊपर, जो ये एक मार्केट में चल रही है कि अटक सीमेंट बिक रही है, तो वी रिजेक्ट दैट थिंग जो है, और वी डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट जो है ना इसमें। अटक रिफाइनरी ने उसको डिनाई किया, मैंने तो पुकार का अपलोड किया है, आपकी तरफ से कोई राइट टाइम के ऊपर उन्होंने वो डिसीजन लिया कि जी उनको बता दे र्यूमर्स को कर्टेल करने के लिए, मे बी हम लोग भी कर दे बाद में। नहीं ये र्यूमर्स है ना, र्यूमर्स पे कमेंट्स करना डजंट मेक एनी सेंस। आपके सामने हम बैठे हमारे के वी डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट जो है ना। हाँ र्यूमर्स पे कमेंट मतलब इस फोरम पे
तो सर वो आप हमें आइंदा प्रिंटेड मैटर यहाँ आप पे जैसे आप ईमेल करते हैं ना, तो जो भी हमें ईमेल करता है हम उसको हार्ड कॉपी भिजवा देते हैं अकाउंट्स की। आप ईमेल करेंगे ना, हम आपको भिजवा देंगे। ये बात कही वो तो सही है, लेकिन हम आपसे ये कह रहे हैं जब आप यहाँ पर आते हैं तो हमारे हाथ में होगी चीज, तो हम अगर पहले बैठ जाते तो 1 घंटा खड़ा नहीं रहना पड़ता, 1 घंटा नहीं चलता। नहीं है देखिए, कॉल करके बोलेंगे तो हार्ड कॉपी भिजवा देंगे। देखिए ये चाय पानी दोबारा लगा। अच्छा, वो हमदान भी कोई जूम के क्वेश्चन है, अगर कोई लोग मौजूद है तो बता कर दे वो पहले ये बात हुई। अच्छा, उनके सवाल ले लेते हैं। कैप्टिव पावर मिक्स जो है ये मेरे ख्याल से भी एक्सप्लेन हो चुका है, होपफुली ये जिन साहब का क्वेश्चन था इट हैज बीन क्लियर्ड। ऑल्टरनेट फ्यूज भी ये डिस्कशन में आ चुका है। लोकल सीमेंट मार्केट शेयर ये भी हमने आपको बता चुके हैं। इसमें लोकल सीमेंट में अटक सीमेंट जो है साउथ की मार्केट में तकरीबन ये हमारा शेयर इज अराउंड अबाउट 25%। बाकी कॉस्ट ऑफ अफगान कोल अटक सीमेंट इज नॉट बेसिकली प्रोक्योरिंग, क्योंकि अफगान कोल में जो है वो साउथ तक आते आते उसमें बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, एफिशिएंसी कमी आ जाती है सीवी में, क्योंकि चोरी चकारी के बाद मामला होता है लॉट्स ऑफ पिलफरेजेस इन दी अफगान कोल। लेकिन अफगान कोल जो हमारी नॉलेज में है वो अभी तकरीबन 40 से 42,000 रुपए का है, लेकिन वी आर नॉट प्रोक्योरिंग, तो नॉर्थ के प्लांट वुड बेटर टेल। विंड ऑपरेशन का बता दिया, इसमें जो है कि इंशाअल्लाह ताला फर्स्ट क्वार्टर 20। बाकी फर्दर एक्सपेंशन प्लान, अभी तो वैसी सीमेंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 50% पे चल रही है, तो इट्स अभी तो वेरी डिफिकल्ट कि इसको हम बात करें कि और इसमें फर्दर एक्सपेंशन की कोई गुंजाइशें मौजूद है। तो इट्स अ साइक्लिक थिंग, द वंस इट रीच ऑलमोस्ट 80% यूटिलाइजेशन, तो उसके बाद फिर एक नई साइकिल आती है जो है ना इसमें। ठीक, एक्सपोर्ट तो आपकी अच्छी है ना, बता रहे हैं आप। जी सर, एक्सपोर्ट पे तो आप कवर कर रहे हैं। एक्सपोर्ट में पैदावार तो जरूर कर रहे हैं, जाहिर सी बात है डिस्पैचेस हो रही हैं, बट प्राइस वाइज कोई इतनी अच्छी मार्केट नहीं है एक्सपोर्ट। बांग्लादेश से भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। देखिए फायदा तो हर एक्सपोर्ट टन सेल करने में फायदा तो ऑब्वियसली होता है, लेकिन फायदा कोई बहुत बड़ा नहीं है। आपका ब्रांड पूरा नाम से दिखता है सर, अटक का ब्रांड प्रीमियम बिकता है। हाँ, लेकिन बैलेंस शीट पे इसका इम्पैक्ट नहीं आता। देखिए वो बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली तो एक हिस्टोरिक नंबर्स के ऊपर आ रहा होता है, हम उसको रीवैल्यू नहीं कराते ना, हम गुडविल बुक करते हैं जो है ना अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो जब ब्रांड जरूर है, क्वालिटी जरूर है, लेकिन एक्सपोर्ट की मार्केट इज अ बायर्स मार्केट, वो इतने उसके ऊपर नहीं जाते कि ये प्रीमियम ब्रांड है, ये लो प्रीमियम ब्रांड है, उनको जो सस्ता मिल जाता है दे आर कंज्यूमिंग इट। अब अभी इनका यहाँ पे भी वाला मॉडल बलूचिस्तान ने अप्लाई नहीं किया है, जो उन्होंने बेस ऑन दी सीमेंट के ऊपर जो लगाई है उन्होंने, जो है ना 1% तो यहाँ पे साउथ में तो वही फॉर्मूला है जो आपका 200 रुपए पर टन ऑफ आपकी आ जाती है, जो 200 के करीब है जो है ना, उस पे भी जो है ना जो रॉयल्टी का जो आ जाता है। लास्ट ईयर में देखिए कुछ एक आध केस था जो हमने जीता भी था, तो उसका रिवर्सल भी उसमें नजर आया था। रॉयल्टी का जो एक पुराना 3 साल पुराना केस चल रहा था जिसमें भी गॉड डिसीजन इन आवर फेवर, तो उसके रिवर्सल की वजह से उसकी डायल्यूशन नजर आ रही है, वरना बहुत बड़ा इंक्रीज उसका इम्पैक्ट नहीं है। देखिए वो नॉर्मली एक ये अगर दूसरे मामला में नहीं हो, इसमें बड़ी हार्मोनी है जो ना प्रोविंसेस के दरमियान में टैक्स रिजीम्स के ऊपर, तो एक प्रोविंस लीड लेता है तो बाकी भी उसको फॉलो करते ही करते हैं, तो वी कैन नॉट रूल आउट कि यही सेम लॉ विद इन द नेक्स्ट फिस्कल ईयर वो इम्पोज कर दे इसको जो है। फर्स्ट क्वार्टर में अगर स्पेसिफिकली देखें तो जुलाई के अंदर काफी ज्यादा एलपीडी इंक्रीज हुआ, रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को काफी टैक्सेशन के इश्यूज थी। Where do you see the local demand
देखिए इसमें जितना डिक्लाइन है उसको कैचअप करना तो इट्स डिफिकल्ट राइट नाउ जो है ना, क्योंकि अगर हिस्टोरिकली देखें तो जो जीडीपी की ग्रोथ होती है उसकी डबल आपकी ग्रोथ होती है इन द सीमेंट जो है ना। आप थोड़ा सा जो पॉलिटिकल प्रेशर्स और जो इकोनॉमिकल प्रेशर्स हैं वो भी अपनी जगह इंटैक्ट ही हैं, यानी अब आगे वे फॉरवर्ड में इंटरेस्ट रेट डिक्लाइनिंग से देयर शुड बी सम पॉजिटिव्स, ठीक है, वी कैन एंटिसिपेट सम ग्रोथ एज वेल एंड वी आर क्वाइट होपफुल कि आगे ये चीजें फर्दर ग्रोथ हो, लेकिन वी आर नॉट सो मच बुलिश एज वेल। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आप कुछ नहीं कह सकते हो जो है ना यानी यहाँ पे देखिए अभी आपकी 30% की ग्रोथ है नेगेटिव, तो ये बाय द ईयर एंड अगर यही सेम पेस भी रहता है तो वी विल एंड अप एट 10%। ठीक है जी, कंक्लूड करते हैं चलो। और तो कोई जूम से कोई क्वेश्चंस नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर। एक है क्वेश्चन ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जूम पे क्वेश्चन है। जूम पे जी जी वालेकुम सलाम। जी मैंने आपसे पूछना था कि ये आप जो लोकल कोल है ये आपने बताया फुली यूज नहीं कर रहा है, तो हालांकि थट्टा सीमेंट कर रहा है, तो आपने जरा एक्सप्लेन करेंगे क्या रीजन है इसका जी? नहीं, लोकल कोल मैंने ये नहीं कहा कि यूज नहीं कर रहा है, प्लांट टू प्लांट सब लोग अपनी प्लांट केमिस्ट्री को देखते हुए उसको यूजेज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द हाई सल्फर इसमें कंटेंट ज्यादा होता है और इसकी जीसीबी भी कम है, तो उसकी वजह से जो हमारे प्लांट केमिस्ट्री है उसके हिसाब से वी आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज द लोकल कोल कंजम्पशन, और तकरीबन 15 से 20% के करीब वी substitute imported coal with the local coal and the other alternate fuels. ठट्टा में obviously ठट्टा can tell better कि उनकी plant chemistry would be better और वहां पे वो ज्यादा usage कर रहे होंगे, but we cannot compromise on the quality of the cement, so we can using around 15 to 20% of the local coal. So maybe you mean to say कि जो ज्यादा यूज कर रहे हैं they are putting their plant to some kind of a risk, maybe, यानी it's a possibility. ये अब मैं इस पर कॉमेंट तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ऑब्वियसली प्लांट पे इफेक्ट तो आते ही हैं, और आप आगे देख भी रहे हैं ठट्टा के में जो है वो प्लांट भी बंद हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा ऑब्वियसली आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट और क्लीन की ब्रेक्स की कॉस्ट और प्लांट भी डेंजर में जा सकता है, बट अगेन इट डिपेंड अपॉन प्लांट टू प्लांट एंड टेक्निकल मैनेजमेंट की क्या उसकी अपनी इनपुट्स है उसके ऊपर। थैंक यू जी, थैंक यू, वेलकम। ठीक है जी, कंक्लूड करते हैं। एक क्वेश्चन मेरा ही सवाल है कि साउथ में प्राइसेस अभी भी 100-150 रुपए कम है कंपेयर टू द नॉर्थ, तो डू यू थिंक ये कन्वर्ज करेंगी एनी टाइम सून फ्यूचर में? बिल्कुल करनी चाहिए, ट्रेडिशनली तो साउथ की प्राइसेस ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्थ, लेकिन इट्स अ वाइस वर्सा सिचुएशन, साउथ के प्रेशर्स आर डिफरेंट, यहाँ की थोड़ी जो मार्केट साइज है वो भी काफी लो है जो है, तो जहाँ पे अगर ये गुंजाइश मिलती है और उसमें होती है तो ऑब्वियसली प्राइस इंक्रीज तो इज मच रिक्वायर्ड। लोकल कोल की मतलब टोटल एवरेज देखिए अराउंड अभी जो हमारा कोयला है अराउंड अबाउट 33-34,000 के ऊपर आ रहा था जाना जी। पिछले साल इसका जो है वो थोड़ा ना हायर साइड पे था, 36,000 के करीब था जो है ना। ठीक है जी, चले, थैंक यू जी, थैंक यू मिस्टर यान, थैंक यू, थैंक यू ऑल। नहीं शुक्रिया, चले, थैंक यू।